एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, या मतलब मेरे प्री और मेंस के फेस के अगर मैं अपना बताऊं तो 40 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक, दैट इज 40 40 40, दैट इज ईयर 200 एंड ईयर 200, पूरे ऑप्शनल के 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए थे, जो कि मैं बार बार रिवाइज करता रहा था एंड इससे मुझे काफी बेनिफिट हुआ था। जितने नंबर ऑफ टेस्ट आप ज्यादा देना शुरू करते हो, आप ये समझने लगते हो कि क्या एग्जैक्टली कहां पे उस स्टेटमेंट में गलती हो सकती है। यू स्टार्ट मार्किंग, अब ब्लाइंडली ऐसे नहीं चलते कि ओनली लिखा है तो मैं इसको करेक्ट इनकरेक्ट कर देता हूं, बट व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ द एमसीक्यू। जब आप वो एमसीक्यू के इंटेंशन को अंडरस्टैंड करते हो, तब आप फिगर आउट कर पाते हो कि वो पूछना क्या चाह रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज आदित्य वर्मा and I have secured All India Rank 200 in the Civil Services Examination 2021. So I'm here to share my strategy with you and how I started my journey, how I did my optional preparation, my GS preparation, answer writing, what to do and what not to do, how to prepare notes from the newspaper. All these things we will discuss in this session, and I'm glad that we are going to have this session. So let's start by this. So first of all, to give you a background, I'm from Lucknow, and I did my schooling from Lucknow Public School, and thereby I went to the college IIT Delhi, and I did my engineering physics over there. So I graduated from IIT in 2020. This was my second attempt. In my first attempt, I couldn't clear mains. I cleared prelims, although my optional was not very much ready, and my optional, by the way, is mathematics. So it is a very large optional. That's why I couldn't manage it in the first attempt. However, in the second attempt, this is clear. So starting with the strategy, that how you should go about the GS and in general any optional subject, or in order to crack all the three stages, that the prelims, the mains and the interview, you have to absolutely stick to this thing that is very important for all the three things, that is prelims, mains and even the personality test. And in mains, we know that GS is divided into 1, 2, 3 and 4 papers plus essay plus this optional, which has 2 papers, paper 1 and paper 2, and then there is Hindi English, which is compulsory to pass. However, merit is not on the basis of it. So we focus on these largely in mains, and according to me, in mains the most important thing is these three things. If you have these three things secured, that is the three pillars, I call it, of mains, that is essay, your ethics and optional. You have to absolutely focus on these three things in order to create a good impact in your main examination. These three things are, I'll again emphasize on it, they are the pillars. The more you invest your time in essay, in ethics and in optional, the more reward you will get. In general, to start with, I'll go in an orderly fashion and begin with prelims examination in general. So here my point was that this syllabus is very important, you should definitely stick by it. So starting with the prelims examination. Prelims, as we all know, consists of 2 papers, that is GS paper 1, that is your general awareness, and GS 2, that is CSAT. And nowadays you have to prepare for CSAT as well, because year by year the difficulty of CSAT paper is increasing exponentially, and as you can see in 2022 recent attempt, I was astonished to see the level of maths coming in. So you have to particularly focus in CSAT as well. Now the days have gone when the CSAT used to be very much simple. It's getting complex now. So for GS, my basic strategy was to, first of all, I completed my syllabus, the basic books, Lakshmikant and Spectrum for Modern Indian History and etc. etc. After completing these basic books, what I did was my prelim strategy was mainly guided by solving mock tests that are available in the market, or online or open mock test, any kind of mock tests that are available. You should always be prepared to solve them. The number of
the more number of questions of or MCQ you solve in prelims, the odds are higher for you to make and crack this examination. So for example, I approximately solved 40 tests for prelims plus 5 to 7 tests for CSAT. At first my score was stagnant around 85 and it was not moving and इसके यहाँ 85 तक आने में भी बहुत टाइम लगा था, but after 15 to 20 tests more it shooted up to 110 and it used to stay 100 plus. What happens is जब जितने number of tests आप ज़्यादा देना शुरू करते हो, आप ये समझने लगते हो कि क्या exactly कहाँ पे उस statement में गलती हो सकती है. You start marking, आप blindly ऐसे नहीं चलते कि only लिखा है तो मैं इसको incorrect कर देता हूँ. But what you do is you start understanding the intention of the MCQ. जब आप वो MCQ के intention को understand करते हो, तब आप figure out कर पाते हो कि वो पूछना क्या चाह रहा है. और prelims के लिए सबसे पहले you should definitely focus on, जैसे मेंस के लिए पिलर्स थे एथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल, वैसे प्रीलिम्स के लिए जो प्राइम फोकस होना चाहिए सबसे पहले होना चाहिए पॉलिटी पे, क्योंकि पॉलिटी में श्योर शॉर्ट 15 क्वेश्चंस आते हैं एंड ये 15 क्वेश्चंस आपका गेटवे है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए. इसके बाद इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होती है एंड ये आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स या रमेश सिंह की किसी बुक से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा. एंड जनरल जो आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हो, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, सीपीआई, एमपीआई, जो बहुत सारी इंट्रिकेट चीज़ें होती हैं, ये डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लेता है एंड दे बिकम इम्पॉर्टेंट. आई कैन रिमेंबर अभी सीएससी 2020 के अटेम्प्ट में सीपीआई पे एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने एंड वो पहला क्वेश्चन नहीं था और ना वो आखिरी क्वेश्चन है. इसका मतलब ये साफ है कि इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स जैसे सीपीआई, इंडेक्सेस, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, रेपो रेट, बैंकिंग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब हमें हमेशा क्लियर होने चाहिए. और ये आप देखोगे तो सिलेबस से डायरेक्टली उठ के आ रहा है. करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, अभी अफगानिस्तान का एक क्वेश्चन आया था सीएससी 2022 वाले अटेम्प्ट में. इसका मतलब यूपीएससी इज गिविंग दोज क्वेश्चन, दोज इश्यूज हु आर मोटिवेटेड बाय रीसेंट अफेयर्स. हमें उसको समझना है एंड अंडरस्टैंड करना है. सो पॉलिटी, अब ये और इसके बाद एनवायरमेंट, इकोलॉजी. अगर इन तीन पे आपका फोकस है तो आपका प्रीलिम्स के ऑड्स क्लियर करना लगभग 50 to 60% बढ़ जाते हैं. इसीलिए पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी इज वेरी मच नेसेसरी टू फोकस अपॉन. एंड प्रीलिम्स का तो मेन मैंने आपको बताया ये कि टेस्ट सीरीज, टेस्ट लगाइए, जितने नंबर ऑफ टेस्ट आप लगाएंगे उतना खुलता जाएगा प्रीलिम्स. नाउ वी कम टू मेंस. या प्रीलिम्स में सिलेबस जो है वो कभी कभी किसी एरियाज में थोड़ा वेग हो जाता है, बट मेंस में ये जो सिलेबस है वो काफ़ी एग्जैक्ट और काफ़ी डिफाइंड है एंड इसका एडवांटेज हमें बहुत अच्छे से लेना चाहिए. तो जैसे GS1 हो गया, GS1 में जो मुझे सेक्शन याद आ रहा है, सबसे पहले तो हिस्ट्री के लिए उन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको इंडिया का नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पता होना चाहिए, नेशनल जो फ्रीडम मूवमेंट था. फ्रीडम मूवमेंट के अलावा आपको वो सारी जितनी भी अपराइजिंग्स हुई हैं वो पता होनी चाहिए. उसके अलावा जो हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर हुआ करता था सिंस द एजेस, जो मेडिवल एजेस में था, जो एंशिएंट आर्किटेक्चर था, वो आपको पता होना चाहिए. और इस तरह करते करते आपका पूरा सिलेबस डिफाइन कर देता है कि किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछने वाला है. एंड जिस तरह से GS1 का या फॉर दैट मैटर किसी भी GS का सिलेबस जिस ऑर्डर में लिखा गया है उसी ऑर्डर में मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे अगर सबसे पहले हिस्ट्री लिखा हुआ है तो सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड ये 10 क्वेश्चंस तक चलता है, फिर 11 to 20 में फिर ये पैटर्न रिपीट करता है. तो इसीलिए सिलेबस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना. सेकेंडली, ये हमारा जो भी है GS1, GS2, GS3 एंड GS4, तो इनमें से तो ये तीन है, इनके पढ़ने का तरीका मोर और लेस सेम है. आपने अपने कुछ नोट्स बना रखे होंगे, उसको बार बार रिवाइज करो, आंसर राइटिंग करते हैं. अभी हम आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी पे आते हैं. हाउएवर GS1, 2, 3 मोर और लेस सेम तरह से चलते हैं. अपने नोट्स रिवाइज करो, आप रिविजन ऑफ नोट्स,
आंसर राइटिंग करना इनकी रेगुलरली, टॉपर्स आंसर कॉपी पे बहुत ज़्यादा विजिट करना, उनको देखना कैसे लिखते हैं, एंड अपने नोट्स अपडेट करते रहना जो कि न्यूज़पेपर से आते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के बाद GS 1 2 3 काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड न्यूज़पेपर के स्निपेट से हमें एग्जाम्पल्स हमेशा उठा लेने चाहिए। जैसे आई रिमेंबर एन एग्जाम्पल जिसमें एक आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बट वन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट was tackling the problem of feticide in certain district, and for tackling this problem what that officer did was he whenever a girl child was born in any village, he used to celebrate that, and he used to he countered that ill mentality for discrimination towards girls by celebrating a childbirth of that too of a girl. So ये धीरे धीरे ये कल्चर चला गया। अब मान लो आप ये इस एग्जाम्पल को विमेन एम्पावरमेंट से कनेक्ट कर सकते हो, इसको आप लीडरशिप से कनेक्ट कर सकते हो जो कि उस ऑफिसर ने प्ले किया, इसको आप इंटीग्रिटी से कनेक्ट कर सकते हो, ड्यूटी विद ड्यूटीफुलनेस से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सब इस तरह के एग्जाम्पल्स, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, एंड इसको आप यूज कर सकते हो GS 4 में, 2 में, एंड 1 में भी इनफैक्ट सोसाइटी वाले क्वेश्चंस में, एंड ऐसे में तो आप इसको बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हो। मूविंग ऑन टू जो मैं आंसर राइटिंग का बताने जा रहा था, पहले एथिक्स का कर लेते हैं, फिर आंसर राइटिंग की बात करते हैं। सो एथिक्स के लिए एथिक्स के नोट्स मैंने अपने बनाए थे, ऑनलाइन बनाए थे OneNote पे, ऑल्दो मेरे नोट्स जो थे वो लेक्सिकन पे बेस्ड थे, लेक्सिकन के, एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी बुक लगती है मेरे को तो, और इस पे स्ट्रेट आइडियाज़ मिल जाते हैं, एंड मैंने इसी से अपने डायरेक्ट नोट्स बनाए थे, और इसके बेसिस पे मैंने एक टर्म्स टेबल प्रिपेयर करी थी, टर्म्स टेबल फॉर एथिक्स। आप देखोगे एथिक्स में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, सीधे क्वेश्चन पूछा गया CSE 2020 मेंस में, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज कॉन्शियंस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, व्हाट आर दीज। तो इसका यू हैव टू हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जब आपके पास इनका डेफिनेशन रहेगा, एंड इस टर्म्स टेबल में मान लो मैंने इस तरह से किया, तो ये उस तो ये मान लीजिए मैं कॉन्शियंस लिख रहा हूं, तो ये कॉलम होगा डेफिनेशन का, ये कॉलम होगा डेफिनेशन का एग्जैक्टली कि क्या डेफिनेशन होती है कॉन्शियंस की। फिर कोई एग्जाम्पल जो मेरी पर्सनल लाइफ का भी हो और प्रोफेशनल लाइफ का भी हो कॉन्शियंस से रिलेटेड, देन एक कॉन्शियंस से रिलेटेड कोट, कॉन्शियंस से रिलेटेड मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स या थिंकर्स का क्या कहना है। ये जब आपके पास कमेंट्स रहेंगे, कुछ एविडेंसेस जो कि महाभारत या रामायण या स्पोर्ट्स रिलेटेड एग्जाम्पल्स, आप इन सबको ढूंढोगे तो, और इस तरह से अपनी अगर टर्म्स टेबल प्रिपेयर करते जाओगे तो आपको इंटीग्रिटी, कॉन्शियंस, ऑनेस्टी, इन सब का एक आइडिया मिल जाएगा, एंड यू विल हैव अ गुड नंबर ऑफ डेफिनेशंस एंड स्टफ टू प्रिपेयर फॉर। तो इससे आपका एथिक्स का कोर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये तो हो गई टर्म्स टेबल की बात। मूविंग ऑन टू हाउ टू टैकल द केस स्टडीज। केस स्टडीज अकॉर्डिंग टू मी इज जस्ट लाइक मैथ्स। आप जितने नंबर ऑफ केस स्टडीज सॉल्व करोगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ केस स्टडीज यू सॉल्व। योर परफॉर्मेंस इन केस स्टडीज विल ऑटोमेटिकली राइज। आप ऐसा कर लीजिए, जब भी आप एथिक्स लेके बैठे हैं या जब भी प्रिपेयर करने बैठ रहे हो, जब आप केस स्टडी वाले एरिया पे जा रहे हो, जो भी आप एथिक्स में आपने पढ़ा, मान लीजिए इंटीग्रिटी या कोई टॉपिक पढ़ा आपने, एंड देन यू गो टू दैट टॉपिक रिलेटेड केस स्टडी जिसमें इंटीग्रिटी टेस्ट हो रही हो या ऑनेस्टी टेस्ट हो रही हो, आप डायरेक्टली उस केस स्टडी को उठाइए एंड उसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जब आप उसको प्रैक्टिस करने बैठेंगे, you'll नो कि आप कितना कुछ कहना चाह रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट ऑन द शीट। तो ये मास्टर करने के लिए आपको नंबर ऑफ केस स्टडीज प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। द मोर नंबर ऑफ केस स्टडीज यू प्रैक्टिस, द बेटर यू बिकम एट इट। तो ये केस स्टडीज आपको बहुत ऑनलाइन जगह है जहाँ पे आपको मॉडल केस स्टडीज मिल जाएंगी, जिसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, आंसर राइटिंग कर सकते हो उसके ऊपर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लेक्सिकन में तो है ही मिलेगा ही आपको। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, PYQs को आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, स्पेशली केस स्टडीज़ में, जहाँ पे आपको पता लगेगा कि
कई बार तो कितनी लंबी लंबी केस स्टडीज आती है जो कि यूपीएससी दे देता है। एंड केस स्टडीज का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पॉइंट यही है कि हमें इसको एक गिवन नंबर ऑफ टाइम में हमें मैनेज करके इसको फिनिश करना है। इनफैक्ट पूरे एथिक्स में ये टास्क रहता है कि इस पेपर को हमें कंप्लीट कैसे करना है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपकी ऑप्टिमम स्पीड होनी चाहिए 15 मिनट्स पर केस स्टडी। ये अचीव करनी है हमें। शुरुआत में ये नहीं आएगा, शुरुआत में मेरे को भी 20 to 22 मिनट्स लगते थे लिखने में एक केस स्टडी, बट इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप होता गया एंड ये नंबर अचीव होता गया। एग्जाम में अगर आप 14 मिनट्स 14.5 मिनट्स में कर रहे हो, यू आर ऑन अ राइट पाथ टू कंप्लीट दैट पेपर। सो स्टिक टू द टाइम लिमिट, वरना एथिक्स कंप्लीट होना मुश्किल हो जाता है। केस स्टडीज में इसके अलावा आप इस तरह की चीजें भी मेंशन कर सकते हो, जैसे मैंने भी ट्राई किया था कि सबसे पहले जो भी केस स्टडी है उससे रेलेवेंट एक रिलेटेड एक कोट लिख सकते हो आप स्टार्ट में, टू कैच द अटेंशन ऑफ एग्जामिनर। जैसे अ लाई इज ऑलवेज अ लाई इवन व्हेन नो वन सेज इट, ऐसे ऐसे करके कोट्स होते हैं, बट ट्रुथ ऑलवेज रिमेन्स ट्रुथ। तो ये वाली बातें, ऐसे कोट्स हमारे इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं जब भी आप आंसर लिखते हैं एग्जामिनर के माइंड में। सो यू हैव टू मतलब यू कैन फॉलो दिस कोट। इसके बाद एक इंट्रो पैरा कि किस टॉपिक पे ये केस स्टडी रिवॉल्व कर रही है। अगर वो इंटीग्रिटी की बात है तो इंटीग्रिटी पे आप थोड़ा सा दिखा सकते हो कि दिस केस स्टडी रिवॉल्व्स वेयर एन ऑफिसर्स क्वालिटी ऑफ इंटीग्रिटी एंड मॉरलिटी हैज बीन टेस्टेड, एंड क्या क्या एथिकल डिलेमास उसको फेस करने पड़ रहे हैं, एथिकल इश्यूज उसको फेस करने पड़ रहे हैं। इसके बाद यू शुड ड्रॉ अ स्टेक होल्डर डायग्राम कि कौन कौन इसमें इफेक्ट हो रहा है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो इफेक्ट हो रहा है। एंड ये कंप्लीटली ये सारी चीज़ें मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये ओवर द ईयर्स मैंने भी एक्सपीरियंस करके एंड जो दूसरे टॉपर्स थे उनके फीडबैक लेके कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये मतलब लीनियज टाइप की है, ये चलती आई ये चीज़ें, एंड ये इंपॉर्टेंट है कि ये हम इन चीज़ों का यूज़ करें बिकॉज ये रिवॉर्डिंग होती हैं ये चीज़ें। सो आप एक स्टेक होल्डर्स का डायग्राम बना सकते हो कि कौन कौन इफेक्ट हो रहा है, जैसे एंड उसमें आप ये भी दिखा लो सोसाइटी एट लार्ज दिस डिस्प्लेड कि आपका है पर्सपेक्टिव आगे, एक आउटरीचिंग पर्सपेक्टिव है कि एक स्टेक होल्डर आखिरकार एक सोसाइटी भी है। सो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी इसके बाद मेन बॉडी होता है एंड आपको अपने आंसर्स को डेकोरेट करते चलना है। बाय डेकोरेशन आई मीन यूज गुड वर्ड्स, लाइक आप इसकी भी एक लिस्ट बना सकते हो, लाइक निष्काम कर्मा, सेल्फलेस एक्शन और स्थित प्रज्ञा, कि मतलब विजडम होना चाहिए। सबसे पहले काम एंड विजडम से हमें एक किसी भी एक्शन को देखना चाहिए, या गांधी जी तालिस्मान, फंडामेंटल ड्यूटीज, इस तरह की चीजें यू शुड डेफिनेटली गो टू पुट इन योर केस स्टडीज आंसर्स एंड इन जनरल एथिक्स आंसर्स टू। अगर मैं एथिक्स के नॉर्मल उसकी बात करूं, एथिक्स के नॉर्मल आंसर्स की जो शुरुआत के सेक्शन ए होता है, तो सेक्शन ए में 13 क्वेश्चंस होते थे एंड 13 होते हैं 10 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स ईच। सो अब हमें अगर आप ध्यान से देखो 15 मिनट्स यू हैव डेडिकेटेड, 15 into 6 केस स्टडीज दैट इज 90 मिनट्स, एंड आपके जीएस पेपर 4 180 मिनट्स का है। इसका मतलब आपके पास 90 मिनट्स बचे हुए हैं एंड उसमें आपको 13 क्वेश्चंस लिखने हैं। डू द मैथ, ये 7 मिनट से भी कम में होगा। सो पॉइंट इज कि बहुत ही फास्ट तरीके से कंप्लीट करना है। सो इसके लिए मेरा एक बेसिक टेम्पलेट ये था, स्पेशली कोड बेस्ड क्वेश्चन के लिए, जो कि मेरा बहुत मुझे डिफिकल्टी आती थी कोड बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करने में। तो मैं क्या करता था, जो भी मुझे कोड पढ़ के समझ में आया उसको फर्स्ट पैराग्राफ में मैं उसको एक्सप्लेन कर लूंगा अबाउट 2 to 3 लाइन्स में। इसके बाद आई ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल, आई विल रिलेट इट टू महाभारता और रामायण और नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, या कोई स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल जो कि उस कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट हो, उससे मैं लिंक करने की कोशिश करता था। इसके बाद इस कोड पे एक और कोई मतलब नया आइडिया इंट्रोड्यूस करके उससे कोई पर्सनल एग्जाम्पल अटैच करना। ये इस तरह की स्ट्रैटेजी एग्जामिनर को इंप्रेस भी करती है एंड अटेंशन और आपका आंसर बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल भी बनाती है, बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव भी मिलता है उस आंसर को, तो लेजिटिमेट आंसर बन के आता है आपका इसको फॉलो करने से। नाउ वी मूव ऑन टू आंसर राइटिंग। सो आंसर राइटिंग की बात मुझे करनी थी क्योंकि ये गेम चेंजर होता है मेंस का। इससे आपका
एक्सप्रेशन टेस्ट होगा, इसी में आपका टाइम मैनेजमेंट टेस्ट होगा, इसमें आपकी स्पीड टेस्ट होगी, और कितना फास्ट आप सोच पाते हो वो भी टेस्ट होगा। इसके अलावा प्रेजेंटेशन भी टेस्ट होगा। एंड बाय प्रेजेंटेशन आई डू नॉट मीन कि आपके आंसर कितने नीट्स हैं, सिर्फ कितनी सुंदर हैंड राइटिंग है, दैट डज नॉट मीन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मीन्स कि एक स्ट्रक्चरल फैशन में आपका आंसर प्रेजेंटेड है, एक चीज आंसर कर रहा है जो पूछी गई है, जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है वो कितने ढंग से वो आंसर कर रहा है आपका आंसर, ये होता है प्रेजेंटेशन। एंड प्रेजेंटेशन विल इंक्लूड अच्छे से डायग्राम्स बनाना, अच्छे से पॉइंट वाइज मैनर में अरेंज करना, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इस तरह से सॉल्यूशंस अगर होंगे तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, मीडियम टर्म सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, इस तरह से प्रेजेंटेशन आपका करने की बात है। तो आंसर राइटिंग का मेरा जो स्ट्रैटेजी ये था कि मैं पहले क्या करता था कि मैं डेली 5 क्वेश्चंस लिखता था, और मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था मैं, बट 1 और 2 मंथ्स के गैप में मैं 1 और 2 टाइम्स 1-2 मंथ्स के लिए मैंने आंसर राइटिंग किया हुआ है। एंड ये स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि मैं 5 क्वेश्चंस लिखता था डेली, एंड जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसके रिस्पेक्टिव करंट अफेयर्स के जो भी 5 क्वेश्चंस लिख लेता था। बट जब मेरा मेंस का टाइम आया, जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप बचता है वो आया, तो आई डिसाइडेड दैट वी ऑल्सो नीड टू आंसर राइटिंग में वी ऑल्सो नीड टू क्लब टॉपर्स कॉपी। जब इन दोनों का साथ में हम इसको लेके आएंगे तो जीएस की प्रिपरेशन और स्ट्रेंथन हो जाएंगी। आई जस्ट टेल यू हाउ टू डू दैट, हाउ आई डिड दैट रैंडम। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैं टॉपर्स कॉपी लेता था, ये है तो टॉपर्स कॉपी प्लस आंसर राइटिंग। ये कैसे किया? टॉपर्स कॉपी लेता था मैं, फॉर एग्जांपल मैंने शुभम कुमार सर की GS2 की कॉपी ले ली, जो कि आपको इजीली अवेलेबल होगी, ऑनलाइन मिल जाएगी। तो आपने शुभम कुमार मतलब मैंने GS पेपर 2 की उनकी कॉपी ले ली, एंड उसके बाद मैंने उनके कुछ ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे जो मैंने उसी दिन पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, GS2 में वाटर, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी या इन इंडिया। सो इस तरह के टॉपिक्स मैंने आइडेंटिफाई करे, गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, जो कि मैंने आज प्रिपेयर किया हो। और उन्होंने कैसे, मैं उस पर अब वही क्वेश्चंस मैं इनकी टॉपर्स कॉपी में देखता था जो कि वाटर से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल डिस्कस द वाटर स्ट्रेस इन इंडिया, और व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इस तरह के क्वेश्चंस जो कि सर की कॉपी में होंगे, शुभम कुमार सर की टेस्ट सीरीज की कॉपी में होंगे, उसको मैं लिखता था अपने आंसर राइटिंग में, डेली लिखता था। एंड यहाँ से मैं 5 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके खुद अपने आंसर्स लिखता था, एंड आई यूज्ड टू कंपेयर माय आंसर्स विद टॉपर्स आंसर्स। तो तब मुझे बहुत कुछ पता लगता था कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, वो लोग कहाँ पे किस एरिया में मुझसे आगे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वाटर स्ट्रेस का ही क्वेश्चन था, शुभम कुमार सर की कॉपी में मैंने देखा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वाटर स्ट्रेस का डायग्राम बना रखा था, जो कि मैं एज अ बार ग्राफ एक जनरल आंसर्स में भी यूज कर सकता था और वाटर के आंसर्स में तो डेफिनेटली यूज कर सकता था। तो इस तरह से मैंने इसको उस चीज में इंटीग्रेट करता गया, एंड इस तरह से मुझे ये भी पता लगा कि मुझे किस तरह से स्ट्रक्चर और बेटर करना है, किस तरह के मैं डायग्राम्स ऐड कर सकता हूँ अपने आंसर्स में, कौन से पॉइंट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कंक्लूजन्स कैसे अच्छे देते हैं। तो ये टॉपर्स कॉपी प्लस आंसर राइटिंग मिक्स करके ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है। सो ये वाला स्ट्रैटेजी आई विल रिकमेंड कि आप फॉलो करो। एक एस्पेक्ट है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ ऑप्शनल के रिगार्डिंग। बाकी जनरल स्ट्रैटेजी तो सेम रहती है, ऑप्शनल की ये स्पेसिफिकली मैथ्स की स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि सारे टेक्निकल ऑप्शनल्स के लिए वर्क कर सकती है ये चीज़। तो आपका फॉर एग्जांपल कोई भी ऑप्शन हो, चाहे फिजिक्स ऑप्शनल हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो थोड़ा टेक्निकल नेचर का हो, उसको हम ऐसे अप्रोच कर सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन बैंक, मेरा स्ट्रैटेजी होता था कि क्वेश्चन बैंक बनाऊं मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और इन क्वेश्चन बैंक के लिए मैंने 2 कॉपीज डिवाइड कर दी थी, पेपर 1 के लिए और एक पेपर 2 के लिए। सो पेपर 1 में एक 5 सब्जेक्ट नोटबुक आती है, तो मैंने उसको 5 सेक्शंस में बांट दिया फर्दर, और सिमिलरली पेपर 2 को ही मैंने 5 सेक्शंस में बांट दिया। तो अब इसके बाद मान लीजिए मैं एग्जांपल देके बताता हूँ मैथ्स में, जैसे मेरा फर्स्ट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा।
तो लीनियर अलजेब्रा में मेरा अगर मुझे कोई क्वेश्चन टफ लगा तो मैं उसको उस क्वेश्चन को यहाँ पे मतलब अपने इस पेपर 1 के उस सेक्शन में लिखूंगा, लीनियर अलजेब्रा वाले सेक्शन में, एंड उस सेक्शन में उसको लिखने के बाद उसका सोल्यूशन भी वही लिखूंगा। इस तरह से मेरा लीनियर अलजेब्रा में एक क्वेश्चन हो गया। कुछ थोड़े टाइम के बाद मुझे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या दूसरे टॉपिक में कुछ फंसा तो मैं उस सेक्शन में जाके उसका वो वाला अच्छा वाला क्वेश्चन लिख दूंगा। ये जब आप करते रहोगे तो आपका एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, या मतलब मेरे प्री और मेंस के फेस के अगर मैं अपना बताऊं तो 40 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक, दैट इज 40 40 40, दैट इज ईयर 200 एंड ईयर 200, पूरे ऑप्शनल के 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए थे, जो कि मैं बार बार रिवाइज करता रहा था एंड इससे मुझे काफी बेनिफिट हुआ था। तो इस तरह का आप लोग भी एक क्वेश्चन बैंक क्रिएट कर सकते हो एंड आप लोग खुद का क्वेश्चन बैंक क्रिएट करो। वो क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यूज का हो सकता है, टेस्ट सीरीज का हो सकता है, और कोई भी मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट हो वो हो सकता है। सो मेरा ये स्ट्रैटेजी था ऑप्शनल के लिए लार्जली। इसके बाद फाइनल मैसेज मेरा ये रहेगा कि ये एग्जाम जो है मतलब ये आपका टेस्ट करता है कि आप कितने देर तक इंड्योर कर सकते हो इस प्रिपरेशन को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस प्रिपरेशन डिमांड करता है। एंड इंटेंस के हिसाब से मतलब आप एक दिन इंटेंस होके पढ़ सकते हो, इट इज़ नॉट अ बिग डील। एक दिन में कोई, मेरे ख्याल से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि 12 और या 13 घंटे पढ़ सकते हैं अगर एक दिन की बात हो। लेकिन अगर हम उसको एक हफ्ते के फेज में देखें, अगर एक हफ्ते मैं बोल दूं कि आपको 12 घंटे लगातार पढ़ना है, क्या वो आप चैलेंज ले सकते हो? ये बात है। ये एग्जाम ये टेस्ट करता है। एंड मैं अगर अपना भी बताऊं तो मैं सारे दिन नहीं पढ़ पाया था 12 घंटे। मेरा ये टारगेट रहता था कि मैं कम से कम 10 to 12 आवर्स कंप्लीट करूं, लेकिन काफ़ी दिन मिस हुए। एंड मिस होने के बाद भी आप ये चाहते हो कि ये चेज़ रहे कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँ। जब आप इसको कंप्लीट करने लगोगे, अचीव करने लगोगे, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। एंड यू शुड ऑलवेज हैव दिस चेज फॉर नॉलेज टू लर्न मोर। या आप कहीं भी अगर आपने किसी टॉपिक के बारे में ऐसा सुन लिया कि मान लो फाइनेंस कमीशन के बारे में सुन लिया, तो यू शुड बी वेरी मच इनफैक्ट ग्रीडी फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट फाइनेंस कमीशन क्या है। हाउ डू आई नॉट नो अबाउट दिस फैसेट ऑफ दिस फाइनेंस कमीशन? आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमीशन का, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस? आई विल मेक श्योर कि मैं अब ये ना भूलूं। तो इस तरह का पैशन, जुनून जब आ जाएगा हमारे अंदर, या ये ज़ील अगर हमारे अंदर है इस समय, तो डेफिनेटली वी विल मेक इट। एंड आई एम श्योर दैट आप लोग को कुछ बेनिफिट हुआ होगा इस सेशन से। एंड आई होप दैट you study well, and all the best.